Good morning, class 11. We are discussing chapter number 2, form of business organization. And in our last video, we have discussed about company organization. मैंने आपको बताया था what is a company, what are features, merits and demerits of a company organization. Today we will discuss about types of companies. कंपनी के टाइप्स के बारे में आज हम बात करेंगे. There are 3 types of companies. Number 1 is private company, number 2 is public company and number 3 is one person company. So first of all I will tell you about private company. तो private company होती क्या है? According to section 268 of the Companies Act 2013, a private company means a company which by its articles of association. तो क्या क्या उसके लिए होता है? जो एक्ट जो आपको सेक्शन 268 दे रखा है कंपनीज एक्ट 2013 के अकॉर्डिंग, रेस्ट्रिक्ट द राइट ऑफ मेंबर्स टू ट्रांसफर शेयर इफ देयर इज एनी. तो इसमें क्या होता है? रेस्ट्रिक्शन होता है प्राइवेट कंपनी में, सो दैट दे कैन नॉट ट्रांसफर देयर शेयर्स टू एनीवन एल्स. उसमें वो अपना जो ट्रांसफर नहीं कर सकते शेयर्स को. नंबर 2, restrict the number of its members between 2 to 200. The minimum number of partners or minimum number of members can be 2 and maximum 200. तो सबसे पहला जो प्राइवेट कंपनी का के लिए रिक्वायर्ड है, नॉट ट्रांसफरेबल शेयर्स इफ देयर इज एनी. नॉट ट्रांसफरेबल शेयर्स. नंबर 2, minimum 2 and maximum 200 members can be possible in a private company. Next, puts a ban on inviting the public to subscribe to its share and debentures. So a private company cannot list itself and cannot issue shares or debentures for the general public. इसका मतलब क्या है कि वो डिबेंचर और शेयर्स अपना इशू नहीं कर सकते फॉर द जनरल पब्लिक. वो अपना शेयर इशू नहीं कर सकते, डिबेंचर्स नहीं दे सकते किसको? जनरल पब्लिक को. नंबर 4, puts a ban on inviting the public to subscribe to its public deposits. और ना ही वो पब्लिक डिपॉजिट्स ले सकते हैं फ्रॉम द जनरल पब्लिक. Must have a minimum paid up share capital of 1 lakh. The amount of capital is subject to change from time to time. और जो मिनिमम पेड अप कैपिटल है दैट शुड बी एटलीस्ट 1 लाख ऑफ रुपीस. So there are 5 conditions that we have discussed for a private company. Number 1, the shares if there is any that will be not transferable. The minimum number of person is 2 and the maximum number is 200. The share of a company is not transferable or cannot be issued. So private company cannot issue share or debentures for the general public. Number next, they cannot take public deposits from the general public. Or number 4, and the minimum paid up capital they must remain with them is rupees 1 lakh and that is subject to change time to time. ये क्या होता है? जो पेड अप कैपिटल है इसकी जो वैल्यू है वो कम ज्यादा हो सकती है. तो बच्चों समझ में आ गया होगा आपके पास प्राइवेट कंपनी क्या होती है. इट इज इंपॉर्टेंट फॉर ए कंपनी टू ऑब्जर्व ऑल द 5 above mentioned condition in order to remain a private company. तो अगर कोई कंपनी प्राइवेट कंपनी है तो उसको ये पांचों के पांचों फीचर्स जरूर क्या करने पड़ेंगे? फॉलो करने पड़ेंगे. अब हम आते हैं नेक्स्ट पब्लिक कंपनी पर. अकॉर्डिंग टू सेक्शन 271 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013, पब्लिक कंपनी मींस अ कंपनी व्हिच इज नॉट प्राइवेट. एक पब्लिक कंपनी वो होती है जो प्राइवेट नहीं होती. इन अदर वर्ड्स, अ कंपनी in which number 1 has no restrictions on transfer of its shares. So public company can transfer the shares. Number 1. तो यह इसका मतलब क्या है? जो प्राइवेट कंपनी में जो शेयर ट्रांसफरेबल नहीं होता, यहाँ पर उस पर रेस्ट्रिक्शन नहीं होती and they can transfer their shares very easily. Number 2 has no maximum limit on the number of its members. Minimum number is 2 but the maximum number could be any number. यानी कि यहाँ पर मैक्सिमम बार नहीं होता, कितने भी मेंबर्स हो सकते हैं इन ए पब्लिक लिमिटेड कंपनी. नंबर नेक्स्ट, कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं होता. They can invite or subscribe the shares and debentures. तो यहाँ पर क्या कर सकता है? यहाँ पर ये शेयर इशू कर सकते हैं और डिबेंचर्स इशू कर सकते हैं. क्लियर हो गया बच्चों? तो जो काम हम प्राइवेट कंपनी में नहीं कर सकते वो यहाँ पर हम
कर सकते हैं। इवन वी कैन इनवाइट फॉर द पब्लिक डिपॉजिट्स, हैज नो रेस्ट्रिक्शन ऑन इनवाइटिंग द पब्लिक टू सब्सक्राइब to its public deposits. On number 5 has a minimum paid up share capital of 5 lakh rupees. तो वहां पर 1 लाख है, यहाँ पर 5 lakhs है। वहां पर शेयर ट्रांसफरेबल नहीं होते, पब्लिक कंपनी में ट्रांसफरेबल होते हैं। वहां पर 2 to 200 होता है, यहाँ पर कोई लिमिट नहीं होती मेंबर्स की। ये शेयर और डिवेंचर इशू कर सकते हैं, पब्लिक डिपॉजिट्स सब्सक्राइब कर सकते हैं, और पेड अप कैपिटल 5 लाख होती है। तो बच्चों समझ में आ गया होगा आपको प्राइवेट कंपनी और पब्लिक कंपनी में क्या डिफरेंस होता है। ठीक है, अब है हमारे पास 1 पर्सन कंपनी। दिस इज द न्यू फॉर्मेट ऑफ कंपनीज। देयर इज नो प्रोविजन ऑफ 1 पर्सन कंपनी ओपीसी इन द इंडियन कंपनीज एक्ट 1956। यानी कि 1956 का जो प्रोविजन है, सॉरी जो कंपनीज एक्ट है, उसमें 1 पर्सन कंपनी का कोई प्रोविजन नहीं है। बट देयर इज अ अमेंडमेंट इन 2012 एंड अकॉर्डिंग टू दैट जो 2012 में इसमें अमेंडमेंट हुआ और एक 1 पर्सन कंपनी का एस्टेब्लिशमेंट होने की जो चेंजेस उसमें हो गए। अब डेफिनेशन ऑफ ओपीसी है क्या? 1 पर्सन कंपनी रेफर्स टू ए कंपनी व्हिच हैज ओनली 1 पर्सन एज ए मेंबर। एक ऐसी कंपनी जिसका केवल एक ओनर होता है, एक मेंबर होता है, उसे हम 1 पर्सन कंपनी कहते हैं। अब इसको क्यों बनाया गया? सबसे पहले दीज आर द मेन रीजंस व्हाई द न्यू फॉर्म ऑफ बिजनेस एंड न्यू फॉर्म ऑफ कंपनी हैज बीन फॉर्म। नंबर 1, मेकिंग द अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर एज ऑर्गेनाइज्ड। हमारे यहाँ पर जो सेक्टर है और बिजनेस है वो बहुत ज्यादा अनऑर्गेनाइज्ड है, उसको ऑर्गेनाइज करने के लिए ओपीसी को हमारे यहाँ पर एस्टेब्लिश किया गया। सोल प्रोप्राइटर बिजनेस इज एन अनऑर्गेनाइज्ड फॉर्म ऑफ बिजनेस एज इट इज अनऑर्गेनाइज्ड पीपल डोंट ट्रस्ट इट मच। क्योंकि ये अनऑर्गेनाइज्ड है इसलिए लोग इस पर विश्वास नहीं करते। दे हेजिटेट व्हाइल गिविंग इट लोन एंड गुड्स ऑन क्रेडिट। तो यहाँ पर क्या होता है, उनको उधार देने में और दूसरे उधार लेने में लोग क्या करते हैं, हिचकिचाते हैं, डरते हैं। बिकॉज ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ ओपीसी सोल ट्रेडर्स हैव गॉट अ गुड अपॉर्चुनिटी टू मूव फ्रॉम द ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर। तो उसमें क्या हुआ कि अब उनको एक अपॉर्चुनिटी मिली, किसको? अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर्स को, जो सोल प्रोप्राइटरशिप्स हैं उनको, सो दैट दे कैन कम टू अ रजिस्ट्रेशन विद 1 पर्सन कंपनी। और वो अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर से ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में अपने आप को चेंज कर सकते हैं। नाउ अ सोल ट्रेडर कैन फॉर्म अ कंपनी विदाउट गेटिंग अदर पीपल टू जॉइन हिम। बिगर किसी को ज्वाइन कराए वो अपने आप को कंपनी के अंदर रजिस्टर्ड करा सकते हैं। दिस विल हेल्प हिम टू हैव ऑल द बेनिफिट्स ऑफ एन ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर, नेमली एन इंक्रीज इन द ट्रस्ट ऑफ द पीपल। इससे क्या होगा? इफ दे गॉट रजिस्टर्ड अंडर कंपनीज एक्ट, they will have more chances, they will have build up faith among the people और among the market। तो अब क्या होगा? उनका faith बन जाएगा मार्केट में, क्योंकि they have become registered, they have become organized। Stopping the formation of private company by wrong means। और दूसरा तरीका क्या था कि जो प्राइवेट कंपनीज गलत तरीके से जो कंपनीज बन रही थी प्राइवेट कंपनीज, उनको रोकने के लिए भी 1 पर्सन कंपनी का ऑप्शन दिया गया। ठीक है, फीचर्स क्या है इसमें? सबसे पहले ओनली 1 पर्सन इज रिक्वायर्ड टू फॉर्म अ कंपनी। सबसे आसान हो गया, केवल एक आदमी ही अपनी कंपनी रजिस्टर करा सकता है। स्टेटस इक्वल टू अ प्राइवेट कंपनी, और इसका जो स्टेटस होता है वो इक्वल होता है एक प्राइवेट कंपनी के। अपॉइंटमेंट ऑफ अ नॉमिनी, यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, यू कैन अपॉइंट अ नॉमिनी आफ्टर योरसेल्फ। दूसरा है जॉइंट होल्डर हो सकता है इन एन ओपीसी, ओनली 1 पर्सन इज द ओनर ऑफ ऑल द शेयर्स ऑफ द कंपनी, बट इफ 2 पर्सन विश टू बिकम, दे कैन बिकम जॉइंट होल्डर्स ऑफ द शेयर्स ऑफ द ओपीसी। नेक्स्ट है लिमिटेड लायबिलिटी होती है इन ओपीसी। द लायबिलिटी ऑफ द मेंबर ऑफ द कंपनी इज लिमिटेड। इन केस ऑफ लॉस, द लायबिलिटी ऑफ द मेंबर इज लिमिटेड टू द कैपिटल इन्वेस्टेड इन द ओपीसी। Next is special words with the name. Some special words are used with the name of OPC. Under its name, 1 person company is written in the bracket. तो अगर आप एक 1 पर्सन कंपनी खोल रहे हैं तो जैसे वहां पर प्राइवेट लिमिटेड लिखा होता है, प्राइवेट लिखा होता है, कुछ जो ऐसे लिखा होता है ना, जैसे लक्ष्मी प्राइवेट कंपनी, ऐसे ही यहाँ पर क्या लिखना होता है, उस अपने नाम के साथ ब्रैकेट में 1 पर्सन कंपनी लिखना होता है, मेंशन करना होता है। नंबर ऑफ डायरेक्टर इन एन ओपीसी, जनरली द नंबर ऑफ डायरेक्टर्स इज ओनली 1, केवल एक डायरेक्टर होता है। द मेन मेंबर ऑफ द कंपनी इज आल्सो इट्स डायरेक्टर, और जो ओनर होता है वही जनरली डायरेक्टर होता है। बट इफ नीड, अगर जरूरत हो, द टोटल नंबर ऑफ डायरेक्टर्स कैन बी अप टू 15। जो है हम डायरेक्टर जो बना सकते हैं वो कितने बना सकते हैं? अप टू 15 हम बना सकते हैं।
ठीक है। अब है फॉर्मेशन ऑफ ओपीसी, हाउ टू फॉर्म ओपीसी, वन पर्सन कंपनी कैसे फॉर्म की जाती है। सबसे पहले द मेन स्टेज ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ ओपीसी आर फॉलोइंग। नंबर 1, गिविंग अ सेपरेट नेम। सबसे पहले कंपनी को एक सेपरेट नेम देना होता है, अलग से एक नाम देना होता है। अपॉइंटमेंट ऑफ ए नॉमिनी दूसरा होता है, यू आर सपोज टू अपॉइंट अ नॉमिनी आफ्टर गिविंग द पर्टिकुलर नेम। उसके बाद है बियरिंग ओपीसी विद द नेम, अंडर द नेम ऑफ द कंपनी वन पर्सन कंपनी इज रिटन इन द ब्रैकेट। उसमें क्या लिखना होता है, यू आर सपोज टू राइट वन पर्सन कंपनी। फिर है डिपॉजिटिंग डॉक्यूमेंट्स टू द रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज, 3 मेन डॉक्यूमेंट्स आर सबमिटेड। 3 मुख्य जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं उनको सबमिट करना होता है, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, AOA एंड द रिटन कंसेंट ऑफ द नॉमिनेटेड पर्सन। AOA क्या होता है हमारे पास, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन होता है, ठीक है, और MOA होता है, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। उसके बाद है सर्टिफिकेशन ऑफ इनकॉर्पोरेशन, व्हेन द रजिस्ट्रार ऑफ द कंपनी इज सैटिस्फाइड विद द डॉक्यूमेंट्स सबमिटेड बाय द ओनर ही विल इशू अ सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। तो रजिस्ट्रार क्या करता है, अगर वो सारे डॉक्यूमेंट सही होते हैं तो इनकॉर्पोरेशन का जो सर्टिफिकेट है वो इशू कर देता है। इसके फायदे क्या क्या है, एडवांटेजेस हैं, लिमिटेड लायबिलिटी होती है, मैंने आपको बताया था, अप टू द अमाउंट यू हैव इन्वेस्टेड इन द फॉर्म ऑफ कैपिटल यू आर सपोज टू बी लायबल फॉर दैट मच अमाउंट ओनली। नेक्स्ट है गुड अल्टरनेटिव ऑफ सोल प्रोप्राइटर बिजनेस, क्योंकि आप ऑर्गेनाइज सेक्टर से अनऑर्गेनाइज सेक्टर से ऑर्गेनाइज सेक्टर में आ जाते हैं, इसलिए अच्छा ऑप्शन है सोल प्रोप्राइटर से बिजनेस का। सोल शेयर होल्डर होता है, सोल डायरेक्टर होते हैं, मोर लॉजिकल है, मोर ट्रस्टवर्दी है, मार्केट में आपकी जो विल है वो बढ़ जाती है, मार्केट विल जो है, मार्केट वैल्यू जो है आपकी वो बढ़ जाती है, और आप एक ऑर्गेनाइज सेक्टर में एंट्री कर जाते हैं। तो ये इसके बेनिफिट्स हैं। लिमिटेशन क्या है, इसमें क्या है, फॉर्मेलिटीज ज्यादा होती हैं, पेपर वर्क ज्यादा होता है, तो ये इसकी एक लिमिटेशन है। शॉर्टेज ऑफ रिसोर्सेज होता है और अनबैलेंस्ड डिसीजंस होते हैं। डिसीजंस आर टेकन बाय वन पर्सन, सो देयर इज ऑलवेज एन एप्रीहेंशन ऑफ देयर बीइंग अनबैलेंस्ड। तो बच्चों ये हमने आज बात की लिमिटेशन ऑफ वन पर्सन कंपनीज के बारे में। अब आगे हम बात करेंगे फॉर्मेशन ऑफ कंपनी, वेरियस स्टेजेस के बारे में। दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक दैट यू शुड लर्न फ्रॉम योर बुक। तो अगले वाले जो हमारी वीडियो होगी उसमें हम डिफरेंट स्टेजेस ऑफ इनकॉर्पोरेशन के बारे में पढ़ेंगे कि कैसे कंपनी को फॉर्म किया जाता है, किसी पर्टिकुलर कंपनी को। बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसे एक बार स्टडी करके रखें, जिससे मैं आपको नेक्स्ट स्टेज में इसको डिस्क्राइब कर दूं। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।